Good morning to all of you. So in last class we have seen the electric components. Now today we will talk about the important topic Ohm's law. And for board exam for class 10th this topic is very much important, very much important. So first we will see what is the statement of Ohm's law. So what is Ohm's law? According to Ohm's law, potential difference across a current carrying conductor is directly proportional to current flowing in the conductor. According to Ohm's law, you will add one point here. According to Ohm's law, potential difference across a current carrying conductor is directly proportional to current flowing in the conductor. ओके तो ये स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ फिजिकल कंडीशन ऐड कर लीजिए का एक पॉइंट यहां पे इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन्स सेम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन्स सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ करंट कैरिंग कंडक्टर is directly proportional to the current flowing in the conductor. Means if physical condition, जैसे temperature or pressure, if the temperature remains same, so according to Ohm's law, if physical condition will remain same, तो होगा क्या? Then the potential difference, suppose कीजिए कि हमने एक वायर लिया and जो इस वायर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, let the potential difference across the end of the wire is V. जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों वायर के बीच का है, दोनों पेयर्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V. And the current flowing in the wire is I. So according to Ohm's law, this statement V is directly proportional to I. Ohm's law के हिसाब से क्या होगा? V is directly proportional to I. इसका मतलब अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट व्हाट विल हैपन? करंट विल आल्सो इंक्रीज. इफ वी विल डिक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस द करंट विल आल्सो डिक्रीज. व्हाई? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस. हमने लास्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाया था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा देन द पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन द सर्किट. यस, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा किसके अंदर? सर्किट के अंदर. एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट. तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, V ज्यादा होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भी ज्यादा फ्लो होंगे. इसका मतलब करंट क्या होगा? ज्यादा होगा. अब यही प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हटाते हैं हम लोग तो एक कांस्टेंट आता है दैट इज I. सो व्हाट इज I? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, सॉरी दैट इज नॉट I, दैट इज R. R क्या है? यहाँ पे हम लोग का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस. यही R क्या है? हम लोग का एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है
और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस. ओके, सो नाउ आई एम after this statement we have got a value that V is equal to R I. Okay, or from here we can say R is equal to V upon I. I am not saying Ravi, हम रवि नहीं बोल रहे हैं, I am saying R is equal to V upon I. Okay, means यहां से एक चीज हम लोग बोल सकते हैं कि if the potential difference will remain constant, if V will be constant, if potential difference will remain constant, R will be inversely proportional to I. Okay, R will be inversely proportional to I, or you can say that I is inversely proportional to R. But when this condition will apply, this condition will be applicable when potential difference will be constant. देखते हैं कैसे. If suppose V is 10 volt, I is, we can say R is 5 ohm. So what will happen? From here we can say I is equal to V upon R, that is 10 upon 5. Then what is, how much amount of current? 2 ampere. Now again what I am saying, I am increasing the resistance double. Means now, since R is 5, now in the second time what I am taking, R is 10. So what is current I am getting? 1 ampere. Now, अब क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट टाइम हम इस वाले रेजिस्टेंस का जो, अब ये रेजिस्टेंस है इसको आधा कर दे रहे हैं. सो व्हाट इज करंट? 4 एम्पियर. सो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे कि अगर हम तीनों के केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है. अगर रेजिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो करंट क्या हो जा रहा है? हाफ. करंट बिकम हाफ. अगर रेजिस्टेंस को हम लोग हाफ करें तो करंट बिकम डबल. मीन्स इफ द पोटेंशियल डिफरेंस will be constant, if V will be constant, R is inversely proportional to I, or we can say I is inversely proportional to R. Means if we will increase R, then I will decrease. If we will increase R, I will decrease, and if we will decrease R, I will increase. Okay, so this, on this we are going to talk on a topic that is factor affecting resistance of a conductor. Factor affecting resistance of a conductor. कौन सी चीज के हम बारे में बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं. इसके बाद हम लोग ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम भी देखेंगे, VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ भी देखेंगे. तो सबसे पहला जो फैक्टर है, R is directly proportional to L. Resistance depend on length of the conductor. Resistance is directly proportional to the length of the conductor. Because what is resistance? It opposes the flow of current. What does resistance do? Resistance opposes the flow of current. Resistance flow of current को क्या करता है? अपोज करता है. तो सपोज अगर हम लोग एक वायर ले लें जिसकी लेंथ जो है हमारी 5 मीटर है, और दूसरा वायर ले लें जिसकी लेंथ हमारी है 10 मीटर है. तो इफ अ वायर इज ऑफ 5 मीटर, then the current will flow through a distance of 5 meter. If a wire is of 10 meter, current will flow through a distance of 10 meter. And what does R do? Resistance opposes the flow of current. So जितनी दूर तक करंट जाएगा उतनी दूर तक रेजिस्टेंस उसको क्या करेगा? अपोज करेगा. So that's why we are saying that R is directly proportional to L. अगर हम लोग लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. सेकेंड फैक्टर, R is inversely proportional to A. R is inversely proportional to A. सपोज कीजिए हमने दो कंडक्टर ले लिया.
एक का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने लिया दैट इज ए, दूसरे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा ए डैश, एंड same amount of current is flowing in both the conductor. If same amount of current is flowing, means the same amount of electron will flow. So that here the number of electron will be, and here also there is number of electron. So what we are finding, कि this wire is having, this conductor is having less area of cross section. इस वजह से जो electrons है, they will collide with each other. जल्दी ये क्या होंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, बहुत तेजी से कोलाइड करेंगे, कंजेस्टेड है यहाँ पे, तो दे विल कोलाइड विद ईच अदर, एंड इफ वन इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विद ईच अदर, सो देयर विल बी नेट द वेलोसिटी, देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी, देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड ड्यू टू विच व्हाट विल हैपन हियर, द रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज. लेकिन इस केस में आप लोग देख रहे हैं हो क्या रहा है कि सिंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मोर, और जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, देन व्हाट इज हैपनिंग, द इलेक्ट्रॉन इज मींस नॉट मच कंजेस्टेड एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन. यस, सो there is means here also there is a drift velocity, here also drift velocity will occur, but here the more drift velocity, there will be more change in velocity because the collision will be fast. सो इस वजह से जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस हम लोग का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ओके, क्यों? क्योंकि ये जो कोलिजन होता है नंबर और जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, यहाँ पे ज्यादा कोलिजन होगा, उसकी वजह से जो चेंज जो हम लोग का होगा, इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड में जो चेंज होगा वो ज्यादा होगा, और उसके वजह से जो अपोज करेगा रेजिस्टेंस वो भी यहाँ पे ज्यादा करेगा और यहाँ पे कम करेगा. So now what we are saying, I am combining equation number 1 as well as equation number 2. हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे. Equation number 1 as well as equation number 2. When I am combining both equation number 1 and equation number 2, what I will get, R is directly proportional to L upon A. R is directly proportional to L upon A. और इसी प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मिलता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज रो, जिसको हम फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे. दैट इज रेजिस्टिविटी. दैट इज व्हाट, इट इज रेजिस्टिविटी. ओके, सो नाउ till here we have got that R is directly proportional to L and R is inversely proportional to A, means if area of cross section will be more, resistance will be less, but if length will be more, resistance will be more. Okay, so now what are the factors on which resistivity depends, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. Now we are going to see the circuit diagram of Ohm's law. Circuit diagram. Ohm's law. So in the circuit diagram, what we are taking? Battery. Okay. Here we are taking a wire. Suppose this is a wire, or let this in the place of wire we are taking a resistance R. Okay, इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे एमीटर, यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं एक की, और यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं एक रियोस्टेट. दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव, दिस टर्मिनल इज negative. So emitter, this terminal will be positive, this terminal will be negative. Now here I will apply a voltmeter. Okay, it will be positive and it will be negative. So this is our circuit diagram of Ohm's law. This is circuit diagram of Ohm's law. So in this circuit diagram, इसीलिए हम आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बताए थे. ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और रेजिस्टिविटी को हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे. पहले हम लोग सर्किट डायग्राम देखते हैं, क्योंकि वहां पे हम रेजिस्टेंस बताए थे, इसलिए कौन कौन से फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो हमने आपको बता दिया था. दैट इज ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. नाउ दिस इज बैटरी, दिस इज की, रियोस्टेट, रेजिस्टेंस, voltmeter,
एमीटर. Okay, now see, always the emitter is connected with the battery in series. एमीटर कभी भी बैटरी से किसमें कनेक्ट होता है? सीरीज में. कैसे पहचानेंगे? ए पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव मींस बोथ आर इन सीरीज. लेकिन जब हम लोग अगर वोल्ट मीटर को देखेंगे तो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन व्हाट? विद इन पैरेलल विद द इक्विपमेंट हुज वोल्टेज वी हैव टू फाइंड. तो एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर हमेशा किसमें कनेक्ट होता है? पैरेलल में. इसका रीजन भी है कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो रेजिस्टेंस डिवाइस है एंड वोल्ट मीटर इज अवर हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है. ओके, तो अब हम लोगों का क्या होगा कि एज सुन एज की इज ऑन, अगर हम लोग सर्किट को क्लोज करना है तो हम लोग को की को क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा. जैसे ही की को क्लोज करेंगे व्हाट विल हैपन? करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग एंड द करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव. ये करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा. ठीक है. और जैसे ही करंट फ्लो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही हम लोग सप्लाई देंगे करंट फ्लो होना हम लोग क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा. एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. देखिए, एमीटर का यूज करते हैं टू मेजर द करंट, वोल्टमीटर का यूज करते हैं. वी यूज द वोल्टमीटर टू मेजर द वोल्टेज. Rheostat is also known as variable resistance, which is used in the circuit to maintain the current, amount of current flowing in the circuit. इसको कोई जॉकी टाइप का होता है. आप प्रैक्टिकल अगर लैब में कभी चांस मिला इस साल तो आपको हम दिखाएंगे कि रियोस्टेट में जॉकी टाइप का होता है. इसका जो होता है एक रेंज होता है. रियोस्टेट का रेजिस्टेंस का एक ओम होता है लगभग 0 to 100 मीटर ओम, 0 to 100 ओम और 0 to 50 ओम. तो हम लोग क्या करें? अगर रियोस्टेट की वैल्यू को बढ़ा देंगे, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, तो वो उस केस में हम लोग का क्या होगा? करंट हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज भी उसी रेशियो में क्या हो जाएगा? हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा. तो अगर रियोस्टेट की वैल्यू को जैसे जैसे हम लोग घटाते रहेंगे तो वहां पे वोल्टमीटर में डिफ्लेक्शन होगा और करंट में भी क्या होगा? हम लोग का डिफ्लेक्शन होगा. तो हम लोग उसी को क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे. एक तरफ हम लोग V, एक तरफ I, एक तरफ R इक्वल टू V अपॉन I. इसको चेंज करके ये रियोस्टेट की जो वैल्यू है जो कि इसको चेंज करके, प्लीज अच्छे से समझिएगा. ठीक है. तो हम लोगों को क्या है देखेंगे कि पहली बार अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, सपोज करो कि हम लोग का ये हो रहा है वोल्टेज 1 वोल्ट एंड इट इज कमिंग एज 0.25. तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4. नेक्स्ट टाइम में 2, 0.5, 4, 3, 0.75, that is also 4. In all the case what we are finding that R is same. तो अगर यहां से हम लोग एक VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो 0.25, 0.5, 0.75, 1, 2, 3, 4, 1, it is 0.25. तो हम लोग को ये ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मीन्स ये जो ग्राफ मिलेगा ये लीनियर मिलेगा. अगर ग्राफ हम लोग को जो मिल रहा है इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ. क्या बोलते हैं? VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ. अगर जो हम लोग को ग्राफ मिल रहा है वो लीनियर ग्राफ मिल रहा है, अगर जो हम लोग को ग्राफ मिल रहा है दैट ग्राफ इज लीनियर, इसका मतलब ये जो सर्किट है it is obeying Ohm's law and this is said to be ohmic circuit. ये Ohm's law को क्या कर रही है? ओबे कर रही है. अगर ये ग्राफ नॉन लीनियर मिल रहा है तो ये सर्किट हम लोग की क्या होगी? नॉन ओमिक होगी. लेकिन आइडियल कंडीशन है कि ये ग्राफ हम लोग को लीनियर मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल करेंगे तो वो हम लोग को एकदम लीनियर नहीं मिलेगा. थोड़ा बहुत जो ये ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं है कि थोड़ी बहुत कर्व आएगी. ठीक है. तो क्योंकि आइडियल केस में ये होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और R की वैल्यू हर जगह पे हर पॉइंट पे अगर आप लोग फाइंड कीजिएगा तो दैट विल बी व्हाट? कांस्टेंट. अगर ये 2 पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे R की वैल्यू फाइंड करो, दैट इज हम लोग को आ जाएगा 3 - 2 अपॉन 0.75 - 0.5, क्योंकि हो जाएगा डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X. मैथ में भी स्लोप के लिए पढ़े हो M इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1.
तो ये 3 माइनस 2 ये हो जाएगा 1/0.25, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 ओम। तो अगर हर जगह पे जो वैल्यू आ रही हो 4 ओम आ रही है, मतलब रेजिस्टेंस हम लोग का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और हम आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी इन द डिटेल सम मोर अबाउट द सर्किट डायग्राम को एक बार और थोड़ा सा ब्रीफ लेके जाएंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द व्हाट फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेजिस्टेंस एंड सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल के भी कभी प्रूफ करेंगे, उसकी बात करेंगे। होमवर्क फॉर यू इज टू कंप्लीट द ओम लॉ, मीन्स ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, सर्किट डायग्राम एज वेल एज VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। इस एक्टिविटी को आप अपने कॉपी में कंप्लीट कीजिएगा, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग इट सेंड इट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।